Hello friends, welcome once again. In the psychological test, I have a very serious and consistent observation, and ये observation और भी ज़्यादा आता है when people go through the psych test assessment online में, and that is there is lack of consistency or congruence amongst the various tests. Let me explain. Now you know there are 4 tests: TAT, WAT, SRT and SD, and 70% weightage is for the TAT. एंड ये सारे टेस्ट एक ही बंदा दे रहा, वो है कैंडिडेट, एंड कैंडिडेट हैज क्लेम्ड हिज वैल्यूज और हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन हिज सेल्फ डिस्क्रिप्शन. बट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन जो टीएटी में कैरेक्टर्स का रेस्पॉन्सेस है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के क्लेम से मैच नहीं होता, जबकि वही कैंडिडेट जिसने अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है वही कैंडिडेट अपने कैरेक्टर्स भी बना रहा है, तो उसके गुण कैरेक्टर्स के गुण बन के बाहर नहीं आता. आई मेक ए स्टेटमेंट, रचयिता के गुण रचना में दिखना चाहिए, एंड आप हो रचयिता कैंडिडेट. व्हाट आई मीन टू से इज there is lack of congruence amongst the various tests. What does it mean is, if the TAT, WAT, SRT are pieces of puzzles, तो ये pieces of puzzle जो है आपस में जुड़ने चाहिए इस प्रकार से, वो नहीं जुड़ रहे. इनफैक्ट विद इन TAT 12 TAT और 12 में what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome, इनके बीच में जुड़ाओ. सो हर TAT में 3 पीस, उस तरह से 3 into 12 TAT. और देन देर आर 60 WAT, 60 SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन के 5 पैराग्राफ. दे मस्ट मर्ज इनटू वन, देन ओनली देयर विल बी कंसिस्टेंसी इन योर परफॉर्मेंस. ये मिसिंग है. नाउ देर इज, बिफोर आई स्टार्ट, if you have not already subscribed the AFOSOP YouTube channel, request you to kindly subscribe it, share it with the friends, do post your comment against each video, and if you have not pressed the bell icon, do that so that you get instant notification to any new video that I upload. Now today psychological test का जो third test है SRT, we'll talk about that, and I'll give you a little orientation, and based on the feedback in the subsequent video I'll show you inconsistency between the TAT response and the SRT, जबकि दोनों में the candidate is same. In one you create the situation and you handle it, that is in TAT, whereas in case of SRT the psychologists give you the situation and you handle it. दोनों में situation है, एक में आप create करते हो और सॉल्व करते हो, दूसरे में साइकोलॉजिस्ट देता आप सॉल्व करते हो. लेकिन देखा गया कि SRT के रेस्पॉन्सेज बहुत बढ़िया है, दे आर सोशली एक्सेप्टेबल रेस्पॉन्सेज, सामाजिक रूप से जो सही है ऐसा रेस्पॉन्स. लेकिन TAT में जो रेस्पॉन्स है वो इनवेरिएबली मैच नहीं होता. ओनली जो लोग रेकमेंड होते हैं उन लोगों का कंसिस्टेंसी थोड़ा आता है, बाकी लोगों का TAT बहुत ख़राब लेकिन SRT बहुत बढ़िया. यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और. आपसे मैं पूछता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या है और खाने वाले कौन से, और आपको पता है 70% वेटेज किसका है, खाने वाले दांत का. सो लेट्स कम टू SRT, सिचुएशन रिएक्शंस. क्विकली, you know that 60 situations are presented in a booklet. Thereafter it has to be completed in 30 minutes, है ना, and no watch is allowed, so you don't wear a watch, there is no watch in the room, so time का अंदाजा नहीं लगेगा. Time is indicated to you by the psychologist. Start time, half time, 5 minutes left, and time end. These are the 4 indicators that you get, and you are supposed to complete the 60 SRTs within this time allotted, 30 minutes. Now let us see इस टेस्ट का एम क्या है. व्हाट इज द एम ऑफ SRT व्हेन यू ऑलरेडी हैव TAT, जिसमें अगेन आपको पूछा गया व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, और उसका वेटेज 70 है. तो जब TAT में 12 बार व्हाट लेड टू द सिचुएशन आपने डिफाइन किया हुआ है, तो फिर ये SRT में 60 बार पूछने का क्या मतलब है. तो लेट्स सी दिस. सो फर्स्ट इज, this SRT test helps to identify candidates' immediate problem solving behavior. Secondly, here since you don't have to make or create the situation unlike in the TAT, all you need to do is read it, comprehend it, understand it and solve it. So it gives you the psychologist candidate's immediate problem solving behavior. Next is, it helps to observe candidate action or movement through the kind of responses that you have given to the
SRT. Same cheese is seen in the TAT character also, but there is a deviation. We'll see what is that. Practical ability to solve a situation logically, that is rationally. How logically you are able to handle these problems, situation given, वो देखा जाता है. Next is, what is your conflict resolution strategy specifically under stressful situation? So there are situations that create stress, और उस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, एंड देन दीज आर चेक्ड विद व्हाट यू हैव डन इन द टीएटी. विल सी दैट. नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सेज अंडर स्ट्रेस. नेचुरली स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसी को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है. नाउ लेट्स सी इस चीज़ों को, इनको रिस्पॉन्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ एसआरटी रिस्पॉन्सेज. नाउ when you respond to them naturally, the weightage given is more. But then more than weightage, it has to be in alignment with what you have done in the TAT in terms of actions by the characters. So वहाँ पे एक्शंस दिखा रहे हो थ्रू कैरेक्टर, और यहाँ पे आप अपने ही स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे हो कि मैं ऐसे करूँगा. नियर सिमिलर सिचुएशन ऑफ TAT एंड इन SRT द रिस्पॉन्स शुड बी अलाइंड. बट देखा गया है कि रिस्पॉन्स मोस्ट केसेस में डिसअलाइन होता है. अगर ये बात समझ में आ रहा तो मुझे फीडबैक में बताना. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ इन्वॉल्वमेंट इज ऑब्जर्व, कि इन सिचुएशन को हैंडल करते टाइम हाउ मच यू इन पर्सन आर इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रोल दैट यू आर टेकिंग, एंड देन इट्स कोरिलेटेड विद TAT. Blank responses indicates avoidance or escape behavior. अगर blank towards the end है कि टाइम के कारण लास्ट के साथ छूट गए, दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. लेकिन वाइल राइटिंग बीच बीच में ब्लैंक्स आ रहे हैं, सो वी विल सी व्हाट इज क्रिएटिंग दैट प्रेशर, जिसके कारण आप एक बीच के SRT को छोड़ के अगले में चले जाते हो, एंड देन विल ट्राई टू लिंक इट विथ व्हाट आर यू डन इन दी TAT. फीडबैक देना, विल शो यू थ्रू एग्जाम्पल. Now, responses oblique your choices reflects your attitude towards life, towards various situation and towards persons. ये आपके जीवन को देखने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस या दृष्टिकोण को दिखाता है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. सो आपके अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहचानने में मदद मिलता है, एंड कोरिलेटेड विद योर कैरेक्टर्स इन द TAT. एंड बेसिकली आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को निकालने में मदद आता है कॉन्शियस लेवल, बिकॉज दिस टेस्ट इज ए कॉन्शियस टेस्ट. नेक्स्ट इज थ्रेट परसेप्शन. आपको सिचुएशन के अंदर के थ्रेट को समझने में काबिलियत है. हाउ डू यू परसीव द थ्रेट और द रिस्क विद इन दैट. इज इट लो, हाई, और इज इट रियलिस्टिक. लो होगा तो आप बेवकूफ़ी करके रिस्क ले लोगे, हाई होगा तो आप डर जाओगे, विड्रॉ हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा तो आप रिस्क असेसमेंट करके अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाओगे. नाउ दिस इज एक्चुअली ट्रू इवन फॉर योर SSB प्रिपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, if your communication skill is weak, if your content is weak, if your current affairs is weak, you should be able to assess the damage this weakness is likely to cause in the SSB performance or in any other interview. कि मेरा communication skill weak नहीं है, क्या इसका असर SSB में low होगा, high होगा, या होगा ही नहीं. Unless you have a realistic approach, आप फिर tips and tricks में उलझ जाओगे. So this is relevant to even your preparation. Next is your ability to assess the risk. We already spoke risk assessment का भी पता चलता है. Stress tolerance and stress response. Under stress, how much you can tolerate and what is the nature of response that you're giving, and whatever you give, is it acceptable or is it not acceptable? Armed forces में we need people with high stress resilience. तो IU1 वो चेक करना बड़ा आसान होता है. Next is, अगर आप सिचुएशन से विड्रॉल हो जाते हो, मतलब सिचुएशन देख के घबरा के बैकफुट पे आ जाते हो, इट शोज अवॉइडेंस बिहेवियर, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द आर्म फोर्सेस. फॉरगेट अबाउट आर्म फोर्सेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपको प्रॉब्लम दिख रहा है लेकिन आप उसको हैंडल करने की बजाय उसको टिप्स एंड ट्रिक्स लगा देते हो, डेड बॉडी का ड्रामा करते हो, एंड यू विड्रॉ, यू डोंट एंगेज विद दैट विल कॉस्ट यू, है ना. सो इवन इन योर SSB प्रिपरेशन, इफ यू फाइंड अ वीकनेस, what do? You accept it and correct it, or do you hide it? That will show whether you are a person who engages with situation or withdraws. So don't withdraw, don't avoid. And now, if your candidate's response is realistic, appropriate, detailed, it demonstrates his intellectual maturity, emotional maturity, and value clarity. इसके बारे में we already spoken पहले.
Premotor and sketchy response reflects negative trend. Now what is premotor we'll discuss in the next video. I will request you to put your comments ki what do you understand by premotor responses. क्या आपने ये word सुना? I'm sure those of you going through coaching, they must be guiding you कि what are pre-responses motor. We don't want people who are giving pre-motor responses. We want motor responses. And negative tendencies अगर आएगा तो it will have consequences. Negative responses है ना. Now, SRT, it helps in confirming or testifies the finding that was observed in TAT and in WAT. That's why this test is also called confirmatory test like WAT. In fact, WAT is also a confirmatory test. For example, इसको समझने के लिए जो TAT के observation दिखे थे जिन pieces में, अगर similar चीजें SRT में भी आ रहा है, करेक्टली कोरिलेट हो रहा है, इसका मतलब आर ऑब्जर्वेशंस आर कंफर्म. लेकिन अगर ऐसा आ रहा है कि एसआरटी में द रिस्पॉन्सेज आर कमिंग हाई बट टीएटी में इट्स कमिंग लो, इसका मतलब है द कैंडिडेट नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द सोशल सेटिंग बट इन एक्चुअल टीएटी में इन एक्चुअल्स द कैंडिडेट डज नॉट फॉलो दोज थिंग इवन व्हेन ही नो व्हाट ही नीड्स टू डू. इसका मतलब यह है सिंपल भाषा में कि एसएसबी में जा रहे हो, आपको पता है एसएसबी की तैयारी में ये चीज करना है, मेरा ये वीक है, आप जानते हो लेकिन आप करते नहीं हो. दिस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होगा, एसआरटी के रेस्पॉन्सेज आएंगे हाई एंड टीएटी के रेस्पॉन्सेज आते लो. इसका मतलब है यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन बट यू डोंट डू इट, डैमेज हो जाएगा. सो वी नीड कॉन्ग्रुएंस, ये जुड़ने चाहिए. दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस बिकॉज ये देने वाला व्यक्ति, चारों टेस्ट देने वाला व्यक्ति एक है, वो है आप कैंडिडेट, है ना. सो कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस बोथ इंट्रा टेक्निक एंड कॉन्फ्रेंस में इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस इज नीडेड. विल टॉक अबाउट इट मोर बेस्ड ऑन कमेंट्स. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टीएटी है, इस तरह के आपको 12 पिक्चर दिए जाते हैं और इसमें आपको व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम बोलते हैं. यू कैन क्लियरली सी इस पिक्चर में वॉट एवर दी पीपल आर हस्बैंड वाइफ और वॉट एवर, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है. नाउ यू मेक ए स्टोरी व्हाट लेड टू द सिचुएशन, देन यू यहाँ पे यू डिफाइन द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, देन व्हाट इज करंटली हैपनिंग में यू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड इन व्हाट इज द फाइनल आउटकम में यू सॉल्व एंड कम टू अ फाइनल कंक्लूजन. एंड दिस कपल जिनका एक कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाता है. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल. एंड इसके बाद का अगला टेस्ट में WAT, यहाँ पे भी हम हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप, ईगो, ये वो देते हैं. यहाँ पे भी आप अपनी एक सोच बोलते हो. ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व बाय ओपन डिस्कशन. बट TAT में देखा गया कि ओपन डिस्कशन की जगह वो अपनी बात को बढ़ा देते हैं और वो फिर एक्सट्रीम चला जाता है, गाली गलौज पे चले जाते हो और या बड़ा आर्टिफिशियली उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देते हो. और समटाइम द कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नॉट एक्सप्लेन क्यों हुआ. सो बड़ा इनकन्सिस्टेंसी आता है. फॉर एग्जाम्पल WAT में बोला प्रॉब्लम और आपने लिखा identification of the problem leads to better solution. It's a good response, but then you find कि you have not identified in the TAT what led to the situation correctly. Many times you make story का line जिसमें lust, काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है. You remember one of the stories जिसमें कि एक husband अपनी wife को बोलता है go to the boss and have physical relationship so that I can get my promotion. Now look at what you've done in the TAT and look at what you're going to write in the WAT when a word trust is coming. तो आप लिखोगे trust is the foundation of healthy relationship. It is good, but it's not matching with your TAT response. There is one story, if you remember, don't knock the door, Raja, come directly inside, Raja. That girl coming through the window. Now look at that story shows indiscipline, lust के ऊपर ट्रस्ट को ब्रीच किया. लेकिन आप WAT में कुछ और लिखोगे. आप WAT में लिखोगे ट्रस्ट इज द फाउंडेशन. आप SD में लिखोगे माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी. हाउ कैन ए पर्सन हुज पेरेंट्स ट्रस्ट हिम गेट इनटू सच एक्टिविटीज ऑफ डोंट नॉक द डोर, राजा, कम डायरेक्टली. सो देयर इज इनकंसिस्टेंसी कमिंग. मुझे बताना समझ में आ रहा नहीं है. WAT के बाद यू हैव सिचुएशन. नाउ व्हाट इज you have to understand is in TAT you create the situation and you handle it, whereas in case of SRT you are given the situation, you are asked to handle. And many times you will realize these tests are interrelated in the sense ki TAT ka situation which was created by you, and in SRT there is a near similar situation presented to by the psychologist. When you respond to them, what is observed that SRT के responses are coming extremely good, socially relevant, but TAT में वो mismatch है. इसका मतलब है गिफ्ट रैपिंग अच्छा है बट गिफ्ट खराब है. जब तक ये मैच नहीं होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, तब तक आपका
परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आएगा. एंड द लास्ट टेस्ट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन. 5 paragraph, what your parent think, friend think, boss thinks, and what are your strengths and weaknesses, what qualities would you like to develop, and all those stuff. We know that. Now, understand, the fourth test, self description, में आप अपने बारे में लिख रहे हो कि ये मेरे strength है, I'm trustworthy, I'm sincere, hardworking, but then that's not observed in the character's action in the TAT. We will talk it through example in the next video based on your feedback here. So I hope these 4 tests are actually pieces of your personality. We are making you operate under different level of consciousness. TAT is subconscious, WAT is between the two, and SRT is completely conscious, and SD is you're telling a person who want to become a leader is telling these are my strengths and weaknesses. So we assume that you know where are these strengths and weaknesses coming. So a rote memory based training will not bring this congruence. We want this congruence. Without this, it will not work. जैसे ये घड़ी है, if this घड़ी is opened and made it, dismantled into all its parts, this can become 2000 parts, but they must fit back. Similarly, your 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT, and the SD must fit back. They do not. जब तक ये नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी आएगा. नेक्स्ट इज इफ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आर फाउंड इन योर, क्या बोलते हैं, SRT, नेगेटिव, मतलब विल सी व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव, बिकॉज दिस टर्म इटसेल्फ क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो अगर आपका रिस्पॉन्सेज सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म से बाहर चला जाता है, इसका परिणाम ज़्यादा सीवियर होगा. कुल मिला के यूँ समझ लो, WAT, SRT and SD, since they are confirmatory test and only forms 10% of the 10% of the assessment weightage, they may not significantly contribute for your success unless your TAT is good. But अगर इसमें findings negative आ जाता है, तो they can significantly contribute in your non-recommendation. It is like जैसे वो 12th में नहीं होता SUPW पास होना जरूरी है, क्योंकि नहीं पास होंगे तो आपका 12th क्लियर नहीं होगा, और अगर SUP में फेल हो गए तो आपका साल चला जाएगा, और SUP में अच्छा किया तो परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये कुछ ऐसे टेस्ट है WAT, SRT एंड SD कि इसको कितना भी चमका लो, दे मे नॉट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट इन योर रिकमेंडेशन बिकॉज वेटेज इज 70% ऑफ TAT. बट अगर ये उल्टा हो गया, SUPW फेल, आपकी बैंड बच जाएगी. समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना. नाउ लेट्स सी कि जैसे मैंने WAT के बताया कि देर आर 7 kinds of responses. What were the 7 kinds if you remember? They were personal, factual, cliches, injunctional, blank, incomplete and observational. And the psychologist is only looking for observational response. And observational response may be 2 parts. There can be 2 types of observational response. There can be many actually, but broadly one is analytical response and second is problem solving, and there are multiple evaluation. We will see, we'll not get into that abhi as of now because we are focusing on SRT. In the same way, based on the response that you give to SRT, your SRT responses itself can be classified into some category. Let's see this. First is you attack or confront the situation. मतलब your responses में the candidate actually head on takes it. Now अगर ये tendency आपके अंदर है तो आप अपने SSB की तैयारी में भी डेल्टा को head on पकड़ोगे. You will come prepared. Current affairs हो, communication skill हो, interpersonal skills हो, stress handling हो, इन सब चीज़ों के ऊपर conflict resolution, इनको head on prepare करके आओगे. Otherwise you may end up writing good here, but you may not actually be doing it in your TAT response. So but let's focus on the SRT. You straight away attack or confront the situation that is presented to you instead of running away. That's the best. Next is you struggle with this situation. सर मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, चल जाएगा ना, कैसे इंप्रूव करूंगा, सर मेरा ये ठीक नहीं, मैं बोल नहीं पाता. यू स्ट्रगलिंग विथ योर SSB प्रिपरेशन. सम पीपल डोंट स्ट्रगल, दे हेड ऑन टेक ऑन. उनको पता है कि मेरा कमी है, इसको दूर करना है. सो आर यू इन द फर्स्ट कैटेगरी और इन दिस कैटेगरी? देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, दे कॉम्प्रोमाइज. डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो. ये सब क्या है? कॉम्प्रोमाइज है. अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज, अपने इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज. ऐसी ट्रेनिंग करने वाला भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना. ही मे बी डूइंग गुड बिजनेस बट इंटीग्रिटी इज लैकिंग. सो ऐसा ट्रेनिंग करने से क्या फायदा? सो कॉम्प्रोमाइज. नेक्स्ट इज यू विदड्रॉ, कंप्लीटली विदड्रॉ, गिव अप.
एसएसबी की तैयारी में भी जैसे ही पता चलता है मेरे अंदर गैप है, कुछ लोग के अंदर वो विल पावर होती है उस गैप को भरने की, जिनके अंदर विल पावर नहीं होता वो मेंटली गिव अप कर देते, बोलते यार ये तो अपने से होगा नहीं, ये तो अपने से, दैट टेंडेंसी अगर वो आपके रेस्पॉन्सेज में आता है, इट विल कॉस्ट यू वेरी वेरी सीवियरली, बिकॉज ऑलरेडी इट वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द T80, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है तो बिल्कुल आपका गाड़ दिए जाओगे. नेक्स्ट इज अवॉइड द सिचुएशन, इट्स अंडरस्टैंडेबल. So this is that. Now, based on the kind of responses that you give, we can classify the SRT responses. And the first is blank response. Blank का मतलब आपने SRT छोड़ ही दिया. देखो अगर बीच बीच में छोड़ रहे हो इसका इंटरप्रिटेशन सीवियर होगा, बिकॉज बीच में छोड़ने का मतलब है आपका दिमाग प्रेशर में आ गया और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए. लेकिन अगर एंड की तरफ रिस्पॉन्सेज आता है, ब्लैंक आता है, तो एंड में आने का मतलब हो सकता है टाइम मैनेज नहीं किया एंड ऑल दैट, तो वो भी खराब है. बिकॉज इफ़ यू डोंट डू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ SRTs तो ये आ जाता है कि आप बहुत ही डेलिबरेटली उसको लिखने का कोशिश कर रहे हो, तो आइदर वे इट विल अफेक्ट यू. सो ब्लैंक रेस्पॉन्सेज अगर बीच में छोड़ा वो बहुत सीवियर असेसमेंट होगा उसका. लेकिन अगर टुवर्ड्स द एंड 3-4 छूटता है तो यू वन कैन अंडरस्टैंड कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, छूट गया. सो प्लीज रिमेंबर, blanks in between will have severe consequences. Next is incomplete or inhibited. There is a difference between incomplete responses and inhibited. Incomplete का मतलब you started writing something in terms of response और बीच में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा, मतलब clearly पता नहीं चल रहा what is the course of action that you're going to take. No, it is not acceptable. Inhibited मतलब कुछ शुरू करता है फिर विड्रॉ करता है, शुरू करता है, मतलब किसी चीज़ को करता है बट उसके अंदर इंटेंसिटी मिसिंग है, कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड आप उसको एक अंत तक नहीं ले जाते. इनहेबिटेड मतलब इनिशिएटिव की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास ना होना, सेल्फ डाउट करना, लो सेल्फ एस्टीम होना, मतलब बहुत कारण हो सकते हैं कि आप शुरू करते हो छोड़ देते हो, नहीं चलेगा यार, दोनों नहीं चलेगा, इनकम्प्लीट भी नहीं चलेगा, इनहिबिटेड भी. नेक्स्ट इज फैंटेसी रेस्पॉन्स. फैंटेसी मतलब एकदम मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि सांप को दूध पिला दूंगा मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, मतलब फैंटेसी में करना, अमरेंद्र बाहुबली की तरह. नो, फैंटेसी नहीं चलेगा. डेफिनेटली दीज टेस्ट आर टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बट दे हैव टू बी बेस्ड ऑन रियलिटी, ग्राउंडेड होना चाहिए, अमरेंद्र बाहुबली टाइप नहीं होगा. सो मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी के आधार पर इमेजिन करना और रियलिटी के आधार पर. हमें रियलिटी के आधार वाला चाहिए. नेक्स्ट इज प्री मोटर रिस्पॉन्स. क्या है ये आप सर्च करके मुझे बताना, कमेंट्स में भी डालना, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. कितना आसानी से पता चलता है कि ये प्री मोटर रिस्पॉन्स है, इमेच्योर रिस्पॉन्सेज है, ये ऐसे ही ऊपर ऊपर से चिपका रहा है. सो मुझे बताना व्हाट आर प्री मोटर रिस्पॉन्सेज. एंड लास्ट, द ओनली डिजायरेबल वन इज मोटर रिस्पॉन्सेज. सो सर्च करो नेट पे, आई एम श्योर कोचिंग में भी पता बताते होंगे व्हाट आर मोटर रिस्पॉन्सेज. एंड क्या आप मोटर रिस्पॉन्सेज को पेन के लेवल पे लिख सकते हो बजाय कि विश्वास के लेवल पे, अपने सोच के लेवल पे बदलाव किए बिना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. मुझे जरूर बताना कि क्या प्री मोटर रिस्पॉन्सेज को या ओनली SRT में प्री मोटर रिस्पॉन्सेज को लिख दो और TAT में बड़ा इमेच्योर तरीके से हैंडल कर दो. विल इट सर्व द पर्पस, विल इट डेवलप द कॉन्ग्रुएंस दैट वी आर लुकिंग फॉर. जरूर मुझे फीडबैक में बताना. And if you've understood this, what my communication through this video is, and anyone who wants 500% clarity ki what kind of responses are coming in your TAT, what are you writing in WAT, what are you writing in the SRT, and what are you claiming are your strengths and weaknesses in terms of SWOT self description. And then if you want to see whether these 60 TATs 12 TATs, 60 WAT, 60 SRTs and the SD, are they meshing? ये अगर जानना है, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा ये जानना है, बिकॉज इसको जाने बिना आप क्या तैयारी कर रहे हो. In the name of SSB, what preparation are you doing? This test is a test of your personality, and the testing tools are psychological test, GTO and interview. So don't uljo in the testing tools. Let there be clarity. So join that. And also, if you wish to join the 2 weeks AFOSOP offline batch at Pune, fresh batch starts every Monday. The next batch is from coming Monday and thereafter any Monday. And if you wish to register for even including personal interview, if you want online, it is available. And to register, you have to call / WhatsApp at 9090099035 and we'll revert back to you. Do share this information with your friends and मुझे जरूर बताना कि आज के इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिला. I hope this videos are bringing certain degree of clarity in you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.